From last Sunday, we have been reflecting on the 7 words of Jesus on the cross. पिछले रविवार से ही हम उन 7 वाणियों पर मनन कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोली। And I know today is Palm Sunday. और आज खजूर का रविवार है। I believe all of us, have come ready to praise the Lord. और हम सब तैयारी से आए हैं कि मसीह की हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। But today we are going to continue the series. लेकिन इस श्रृंखला को हम चालू रखेंगे। And today we are going to study about the next 2 words. और आज हम आगे के 2 वाणियों पर मनन करेंगे। Are you ready to listen from the Word of God, church? क्या आप तैयार हैं मेरे से? As we, approach, we are already in the Passion Week. जैसे कि हम पवित्र सप्ताह में हैं। Good Friday, Easter is coming. शुभ शुक्रवार और ईस्टर पास ही है। It's good to meditate on the cross. और भला है कि हम क्रूस पर मनन करें। Because that is the center of the gospel. क्योंकि सुसमाचार का मध्य भाग यही है। That is the center of our faith. हमारे विश्वास का केंद्र यही है। Hallelujah. Our faith revolves around the cross. और हमारा विश्वास क्रूस के इर्द गिर्द ही घूमता है। Without the cross, we are nothing. और बिना क्रूस के हम कुछ नहीं। Paul says, पौलुस कहता है, if Christ is not crucified, अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए, if he is not resurrected, न ही वे उठे, then our preaching is in vain. तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। But thank God लेकिन धन्यवाद for the cross. क्रूस के लिए। That one day, एक दिन Jesus came यीशु मसीह आया and he died for us. और हमारे लिए मरे And he changed the course of our lives. और हमारे जीवन के पूरे प्रकार को उन्होंने बदल दिया। Hallelujah. So are we ready? क्या हम तैयार हैं? I want to request Grace. She will come forward and she will lead us. सिस्टर ग्रेस से निवेदन है वे हमारी अगुवाई करें। My sister Nicholas. सिस्टर ग्रेस। But can we clap for her? परमेश्वर की स्तुति हो। As we all know that we're reflecting on the words of Jesus. और जैसे हमें ज्ञात है कि हम प्रभु यीशु की वाणी पर मनन कर रहे हैं। So we'll be reflecting from John 19:25 to 27. तो आज हम यूहन्ना 19:25 से 27 पदों पर मनन करेंगे। So before we get into the word, let's just bow our heads and pray. वचन में जाने से पूर्व क्यों ना हम सिर झुकाकर प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus, for this wonderful time. धन्यवाद यीशु इस अद्भुत समय के लिए। Lord, as we sit here to reflect from your word, जैसे हम यहाँ खड़े हैं प्रभु जी आपके वचन से सीखने के लिए, मनन करने के लिए, I pray that help each one of us to prepare our hearts, हम सभी की मदद करें कि हम अपने हृदय को तैयार कर prepare our minds अपने मन को तैयार कर to पाएं, receive what you have to say. कि हम ग्रहण कर पाएं जो आप हमसे कहना चाहते हैं। Thank you, Holy Spirit, that you are at work. धन्यवाद पवित्र आत्मा की आप कार्यरत हैं। In Jesus' name I pray. मसीह के नाम में मांगते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। So we'll just read the verse, John 19:25 to 27. यूहन्ना 19:25 से 27। Now they stood by the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour that disciple took her to his own home. परंतु यीशु की क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी, और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। So as I was meditating on this verse, तो जैसे मैं इस वचन पर मनन कर रही थी, 4 things really stood out to me. 4 चीजें मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी, And I'd like to share that with you all. और मैं वे आपसे बांटना चाहूंगी। The very first thing that struck me पहली चीज जो मुझ पर प्रभाव डाली वह थी was Mary, मरियम, the pain that she carried. जो पीड़ा वे लेकर चल रही थी।
In verse 25, we see that she was standing right at the feet of the cross. और 25वें पद में हम देखते हैं कि यीशु के क्रूस के बहुत नजदीक वे खड़ी थी। And we know that she witnessed her son dying. और हम जानते हैं कि उन्होंने देखा अपने पुत्र को मरते हुए। It was a very difficult thing. और बहुत ही कठिन चीज थी। I believe that even more than any of the disciples, she went through that pain the most. और मेरा विश्वास है कि चेले जिस दुख से गुजरे उससे कहीं ज्यादा मरियम का दुख था। And even more that she knew about this right from the start. और कहीं ज्यादा इसलिए भी क्योंकि बहुत शुरुआत से आरंभ से ही उन्हें ज्ञात था कि यह होगा। In Luke 2:35, लूका अध्याय 2:35 when Jesus was taken to be dedicated, जब यीशु मसीह को ले जाया गया कलीसिया में, Simeon says this to her. शमौन उससे कहता है, Yes, a sword will pierce through your own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. लूका अध्याय 2:35 वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पर छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। So we see that she was knowing about this fact right from the start. तो हम यह देखते हैं कि मरियम को यह तथ्य आरंभ से ही ज्ञात था। And I was thinking from a parent's perspective और मैं एक पालक के तरह विचार कर रही थी that how difficult it was for her to carry this burden all along. कितना कठिन रहा होगा इस बोझ को पूरे समय अपने ऊपर लेकर चलना। She had to witness her son being shamed. अपने ही पुत्र को लज्जित होते हुए माँ ने देखा। She witnessed him being betrayed. अपने ही पुत्र को गैर समझ होते हुए लोगों ने उसे छोड़ दिया, यह भी उसने देखा। And in the end, she also saw him die on the cross. और अंत में उसे क्रूस पर मरते हुए भी देखा। Imagine the child that you raised up कल्पना कीजिए कि वह बच्चा जिसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया, die right in front of your eyes. आपकी आंखों के सामने उसकी मृत्यु हो। So it was really amazing to see the strength and the resilience that Mary carried. तो बहुत ही अद्भुत है मरियम के सामर्थ्य को और उसकी सहन शक्ति को देखना। You know, as in the Protestant circle, we don't give Mary much credit. और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स के बीच में मरियम को हम ज्यादा श्रेय नहीं देते। We fail to remember that even Jesus regarded her. लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि मरियम को यीशु मसीह ने ही वह आदर दिया। And we come up with the argument that he called her woman. और हम इस वाद विवाद में पड़ जाते हैं कि यीशु मसीह ने मरियम को नारी कहकर संबोधित किया। But I was looking at the original word that was used. लेकिन मैं जो ओरिजिनल शब्द है जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया उसे देख रही थी। In Greek and in Hebrew, the word is called Gain or Isha. यूनानी और इब्रानी में जो शब्द है वह है Gain or Isha. गायन और ईशा। Gain in Greek and Isha in Hebrew. गायन यूनानी में और ईशा इब्रानी में। So this was a respectful form of addressing a woman. तो यह बहुत ही आदरपूर्ण संबोधन था एक महिला के लिए। Just like in today's age we call a woman ma'am. जैसे कि आज के समय में किसी महिला को संबोधित करते हुए हम मैम कहते हैं, It was a respectful form of address. उसी प्रकार का आदरपूर्ण संबोधन यह था। And Jesus always respected his mother. और यीशु मसीह ने सदा ही अपनी माता का आदर किया। So why don't we give Mary the credit that she's due? तो क्यों नहीं हम मरियम को वह श्रेय दें As even जो angel Gabriel said, उसे मिलना चाहिए। जैसे कि स्वर्गदूत देवदूत गैब्रियल ने कहा that rejoice highly favored one. कि आनंदित हो जाओ बहुत फेवर्ड महिला, Blessed are you amongst women. क्योंकि तुम सबसे ज्यादा आशीषित हो महिलाओं में। We see that Mary was so obedient right from the start. मरियम पहले से ही आज्ञा पालन करने वाली थी।
Because of our obedience, we receive salvation. और उसके आज्ञाकारिता के कारण हमने उद्धार पाया। We all know that the first woman disobeyed, हम सभी जानते हैं कि जो पहली नारी थी उसने आज्ञा पालन नहीं किया and mankind fell. और मनुष्य गिरा, But through the obedience of one, लेकिन एक के आज्ञाकारिता के कारण we have hope for salvation. हमें आशा है उद्धार की। Amen. The second thing that stood out to me, जो दूसरी चीज मुझ पर प्रभाव डाली वह थी, and this really teared my eyes, और इससे मेरे आंखों में आंसू आ गए, was the selfless love of Jesus on the cross. मसीह का अपार प्रेम, बेशर्ता प्रेम। You see, the cross was the only one time क्रूस वह एक समय था, एक अकेला समय, where Jesus could have focused on himself. जहां पर यीशु मसीह सिर्फ अपने बारे में सोच सकते थे। We all know what he went through on the cross. हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार की यातना से वे गुजरे क्रूस पर। But still, फिर भी even in that situation, उस परिस्थिति में भी his focus was on others. उनका लक्ष्य केंद्रित था दूसरों पर। His focus was on the needs of others. दूसरों की जरूरतों पर उनका लक्ष्य केंद्रित था। And in this case, और इस संदर्भ में भी we see that he recognizes the need of his mother. हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी माता की जरूरत को समझते हैं। We see a wonderful display of compassion and gratitude. और यहाँ हम देख पाते हैं किस प्रकार का अपार प्रेम और कृतज्ञता यीशु मसीह ने दिखाई क्रूस से। That even before he leaves, he made sure that his mother was taken care of. कि पृथ्वी से जाने के पूर्व, अपनी आत्मा को छोड़ने के पूर्व ही उन्होंने ध्यान दिया यीशु मसीह ने कि उनकी माता की देखभाल हो। He entrusted Mary in the hands of John, और यूहन्ना के हाथों में उन्होंने अपनी माता को सौंपा, the beloved. जो कि यीशु मसीह का प्रिय चेला था। And many times we forget what our parents have done for us, और कई बार हम भूल जाते हैं हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, or what anyone has done good in our lives. या किसी ने भी हमारे जीवन में क्या भला किया है, And we fail to show that gratitude or the thankfulness to them. और वह कृतज्ञता दिखाना हम भूल जाते हैं। You know, and this really made me think, और इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, what happens when we face a storm in our life? क्या होता है जब हम कोई तूफान का सामना करते हैं अपने Where do जीवन में? we focus? तो हमारा लक्ष्य कहाँ होता है? It's usually and almost every time on ourselves. और हालांकि हर बार यह लक्ष्य जो हमारा होता है खुद पर होता है, But when we say that Jesus is our standard, लेकिन जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा स्तर है, so you now know how difficult it is. तो आप जानते हैं कि कितना कठिन है। Because even in his difficulty, he still chose others and he still chose to serve others. क्योंकि अपने सबसे कठिन समय में भी यीशु मसीह ने चुना कि दूसरों के बारे में सोचें और उनकी सेवा करें। You know, and we also should try to not lose sight of the people around us. और हमने भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उन्हें हम ना भूलें, Even in the storms that we face. अपने कठिन परिस्थितियों में, अपने तूफान के समय भी। We should try to walk in love and compassion. और सदा ही प्रेम और दया की भावना के साथ हम बढ़ें। The third point तीसरी चीज is the relationship between John and Jesus. यीशु मसीह और यूहन्ना का रिश्ता। So the verse says, Jesus is saying, "Behold your mother." और यीशु मसीह कहते हैं, देखो तुम्हारी माता। So John immediately understood what Jesus said. यूहन्ना ने तुरंत समझ लिया कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, He immediately understood what he meant and what his heart was. और यूहन्ना ने तुरंत समझ लिया कि यीशु मसीह का तात्पर्य क्या था और उनके हृदय में क्या था। You know, Jesus did not elaborate. यीशु मसीह ने बहुत
विस्तार से नहीं समझाया that I'm going to die now, so my mother is going to be alone. कि मैं मरने वाला हूँ तो मेरी माता अकेली रह जाएंगी, You please take her, you take care of her. उसे ले जाइए, उसका देखभाल आप करें। He didn't say all of that. उन्होंने इस प्रकार से नहीं किया, It was just 2 words. सिर्फ 2 शब्द। First he said to Mary, मरियम "Behold से your उन्होंने son." कहा देखो तुम्हारा पुत्र, And to John he says, "Behold your mother." और यूहन्ना से कहा कि देखो तुम्हारी माता, And John instantly understood it. और यूहन्ना तुरंत समझ गया। So all of y'all, I don't know, maybe because Jesus always spoke in parables. यीशु मसीह खासकर कहानियों के द्वारा लोगों से बात करते थे, That's why maybe John was trained. इसलिए शायद यूहन्ना सीखा हुआ था, But however he understood. लेकिन फिर भी उसने तुरंत समझ लिया। And this made me reflect on my own life. और इसने मुझे मेरे खुद के जीवन पर देखने पर मजबूर किया। All of y'all might know me and Abhi have been married for 3 years. और आप सभी को ज्ञात है कि पासवान अभिषेक और ग्रेस का विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था, But I still fail to understand what he's saying many times. लेकिन अभी भी कई बार मैं चूक जाती हूँ समझने में कि वे क्या कहना चाहते हैं, Because he's a man of few words, very few words. क्योंकि वे बहुत कम शब्दों वाले पुरुष हैं। So many times we have the silly arguments तो कई बार हमें थोड़ा वाद विवाद होता है, where I'm telling him you should be more detailed, you should be more specific. जहाँ मैं उनसे कहती हूँ कि आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए, थोड़ा ठीक से बताना चाहिए, And he would argue with me saying, but you're my wife, लेकिन वे मुझसे कहते हैं कि तुम तो मेरी पत्नी हो, you should understand me. तुम्हें समझना चाहिए मुझे। He has a point though. हालांकि उनमें भी वे जो कहते हैं वे भी सही है। So I believe that we all should strive to reach to that level. मेरा विश्वास है कि हम सभी ने प्रयास करना चाहिए कि हम उस स्तर पर पहुंच पाएं, That level of intimacy with Christ. यीशु मसीह के साथ इतनी नजदीकी That even a hint from him is enough for us to understand. कि उनके द्वारा दिया गया एक इशारा भी पूरा हो कि हम समझ पाएं, That we would understand his heart. कि हम उनके हृदय की बात को जान पाएं। And if you read the Bible regularly, और अगर आप बाइबल को निरंतर पढ़ते हैं you will find many hints. तो आप कई इशारे समझ पाएंगे। Amen. And the last point और आखिरी चीज is from verse 27, the latter half, पद 27 का दूसरा भाग, where it says that John took her to his home. जहाँ लिखा है कि यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। So Jesus entrusted mother in the care of John. यीशु मसीह ने अपनी माता को यूहन्ना के हाथों में सौंपा। We see that both John and Mary both obeyed the command of Jesus. और हम देखते हैं कि दोनों ही मरियम और यूहन्ना ने मसीह के आदेश का पालन किया। And we know that Jesus had other siblings. हम जानते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे भाई बहन थे। So then why John? फिर क्यों यूहन्ना? Mary could have gone to any of her other children. मरियम अपने किसी भी दूसरे बच्चे के पास जा सकती थी। I'll just give you references. Matthew 12, 46 to 47. मत्ती 12:46 से 47, John 2:12. यूहन्ना 2:12, John 7:3 to 10. यूहन्ना 3, John 7:3 to 10. यूहन्ना 7:3 से 10। So you will find those over there. आप वहां पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। So despite of him having other siblings, यीशु मसीह के दूसरे भाई बहन होने के बावजूद भी he still gave the responsibility to John. मरियम की जिम्मेदारी उन्होंने यूहन्ना को दी। And many scholars believe many things about this. और इसके बारे में अलग-अलग विश्वास है। That perhaps Jesus wanted to leave Mary with a believer. हो सकता है कि यीशु मसीह एक विश्वासी के पास अपनी माता को छोड़ना चाहते थे, Because in John 7 we see that his siblings did not believe in him. क्योंकि यूहन्ना 7 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर उनके भाइयों ने विश्वास नहीं किया। Perhaps Jesus had the simple foresight and wisdom या फिर हो सकता है कि साधारण तौर पर यीशु मसीह को वह दूरदर्शिता थी, वह बुद्धिमत्ता थी that John is going to outlive everyone.
कि यूहन्ना सभी से ज्यादा बेहतर देखभाल करेंगे अपनी माँ की and that he would die a natural death. और एक नैसर्गिक मृत्यु उनकी होगी। So he chose John. तो उन्होंने यूहन्ना को चुना। But I like this reason the most. लेकिन मुझे जो कारण सबसे पसंद है वह है That Jesus did this to emphasize यीशु मसीह ने यह किया that our relationship in him ताकि वे यह बता पाए कि हमारा संबंध उनके साथ and in the kingdom और इनके राज्य में are more important than the blood. उसका महत्व कहीं ज्यादा है रक्त से, The blood relations, I mean. या रक्त का संबंध, लहू का संबंध उससे। So because in Mark 3:35, क्योंकि मरकुस 3:35 में Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं whoever does the will of God is my brother, my sister and mother. यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। Amen. So by that इससे we come to know that because of Jesus we are entering into his family. हम समझते हैं कि यीशु मसीह के कारण हम उसके परिवार में प्रवेश करते हैं। If we do his will, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, everyone who's accepted him as the Lord and the Savior तो हर कोई जिसने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है is a part of that family. उसके परिवार का भाग है। How wonderful is that? कितना अद्भुत है। So in Christ तो मसीह में we are all brothers and sisters, हम सभी भाई और बहन हैं, mothers and fathers. माता और पिता हैं। Amen. आमीन। And it is the will of God और यह प्रभु की इच्छा है that we all live in harmony and peace with each कि other. हम एक दूसरे के साथ एकता में और शांति में बने रहें। As we all know in Psalms 133, जैसा कि भजन संहिता 133 the verse says, "Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity." ऐसा लिखा है कि भला है सभी लोगों के लिए कि एक साथ एकाग्रता से रहें। So God really desires us to be united परमेश्वर की इच्छा है कि हम में एकता हो and that we should take care of each other और हम एक दूसरे की देखभाल करें, regardless of our blood relation. भले ही हमारा खून का नाता हो या ना हो। Amen. So let this message be an encouragement to all of us तो यह संदेश क्यों ना हमारे लिए उत्तेजना बने to be obedient to God, कि हम आज्ञाकारी बने प्रभु के लिए, to walk in love and care for each other प्रेम में चले एक दूसरे के प्रति, regardless of our circumstances, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, to crave for an intimate relationship with Jesus, और हमेशा इस चीज की बात जो है कि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ बहुत नजदीकी है, and lastly that we would build godly relationships among ourselves. और ईश्वरीय संबंध एक दूसरे के बीच में हम बनाएं। Amen. Praise God.